First of all, so congratulations to all of you for getting selected into JNU. I think many messages got on Telegram, and I'm very happy. More than you people, like you had successfully get into your kind of this ambition you were looking for JNU. Some were wanting PIS and some were preparing for CPS and all. So I hope you are all very happy with this result. And from JNUSC, we can't basically express ourselves in a way that we wanted you people the talent would deserve. And I know this whole total all okay. 1 second. Is it not audible to all of you? Right. 1 sec. Fine. So I think now I'm audible. Okay. So basically, we wanted this discussion to be right. Okay. Let's do this. Fine. So basically, if we want this discussion to take place, and we had two aim of this discussion. First, definitely to congratulate you and to let other people know that there are people who had correct this exam without any professional coaching or without any private giving money to any business. Okay, so that is definitely your first motto, and the second motto is to help you in the further process, how you are going to basically which documents you would be needing, what is the process when you have to come to the campus, when your physical verification would take place. So just sit and take a long breath and just keep it all the problems aside, all the confusions aside. We are here to basically resolve all your doubts. ठीक है? And before going into doubts, I just want a small intro of all of you. Whether you were basically few of yesterday only, I was telling ki more than 50 students from JNU SC got selected, and though we have only few of them had joined, the reason being few of them are in their institution for TC and marksheet and all things, because they need documents, so they are there to take their documents, so they could not join. But I can see 7 or 8 of you now here, and almost 35 in our group, and rest 15 to 20 students had messaged me on WhatsApp, who were basically connected to us on the YouTube. So this is not a self exaggeration or something. It is basically what we want is ki this was our first batch from JNUSC, JNU Students for Change, and we wanted to start a movement. It is not like a charity. So we wanted to start a movement where deserving talent coming from a rural background, coming from a different language than English or Hindi, who are deserving to come to JNU, and they are just the money is the only hurdle that is coming, because after CUT pattern, the coachings are getting flourished. We had seen this JE coachings, NEET coachings, and all things. So 53 of you from JNU Students for Change getting selected. I just congratulate all of you. I congratulate all of you for this hard work, dedication you had done on yours, and you had been there on YouTube videos. You were watching YouTube videos, you were joining classes. Many of you were attending our free test. तो हमने शायद 2 या 3 ही टेस्ट लिए थे, 2 ही टेस्ट लिए थे, बट यू वर देयर, एंड आप लोगों का प्रेजेंस हर जगह था, और वो आज शो दिख रहा है कि तो कट ऑफ बहुत नीचे गई है, एंड कट ऑफ नीचे इसीलिए गई, एंड योर सिलेक्शन डोंट से थिंक कि बिकॉज कट ऑफ हैड फॉलन टू 68 फ्रॉम 84 दैट्स व्हाई यू आर सिलेक्टेड. नो, you are selected because in JNUSC we were basically, our target was one. From the day one I said this thing ki you are not looking for any other university, you are preparing for JNU, so your target should be 80 plus, and that's why you people are got selected. The cutoff fallen to 68, there's definitely some reasons, like there could be many reasons. One was the question paper was little, I said ki 2-3 marks, 2-3 questions basically niche ja sakti hai. So if you would buy 2-3 questions that convert into 4 marks per question, so it convert into 17-18 question, and exactly the cutoff has fallen to 16 marks. So I had also not thought ki 16 marks girega, but theek hai jo bhi hai. Now you are in JNU. I just want a small intro of you, if you can switch on your camera, and then we would go on. So first of all, congratulations to all of you, and
अभी आपका एक नया शुरुआत होने वाला है। आई गेस आप सब हाँ, we would talk about everything. ठीक है, session basically, I just wanted this session to, in a way, because we are now a family and we are not meeting for the first time. I guess I know few of them by name. I can tell Rajarsi. I also mentioned yesterday also. He was one of our topper in the test. In both the tests, he was the one of the topper. So and now he is with us. ठीक है. So I know many of you. Akash was one of the active member. ठीक है. Sunil basically, I remember Sunil is from JNU itself, and I remember when he asked from me कि my marks is here, so I said कि नहीं यार मुश्किल है. But his मुश्किल in sense कि मैंने last year के कट ऑफ के हिसाब से बोला था, but now he had made it because the level of their study was definitely पेपर थोड़ा अटपटा सा था, तो इस वजह से मार्क्स आपके कम हुए. लेकिन बाकी लोग जो थे वो रेस में ही नहीं थे, और इसी वजह से यू गोट सिलेक्टेड, क्योंकि तुम लोगों ने की पढ़ाई उस लेवल की हुई थी, बाकी लोग रेस में ही नहीं थे. इफ यू कैन से कि 68 मार्क्स उस पेपर में नहीं आए, मतलब पीपल वर नॉट इन द रेस बिकॉज प्राइवेट कोचिंग्स वर टीचिंग थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर. ठीक है, एंड वी वर गोइंग विद द our syllabus, our pattern, and with the 80 ka target. So congratulations to all of you again. Now I just want you to switch on your camera and say whatever you want to say in a way कि आपने कैसे, मतलब how you are feeling. Just give you me small intro because I want to see कि कितनी states से आप हैं. So I just want small intro of you. ठीक है, सो दैट वी कैन हैव कि हम बाकी अगला सेशन जो होगा अगली ईयर के लिए, तो आई होप कि आप लोग जब कैंपस में आएंगे, अभी तो देखिए हमारे पास कितना लोग है सर. ओके, वी हैव 15 पीपल नाउ, एंड आई गेस बाकी लोग जब आ जाएंगे कैंपस में तो हम मिलेंगे, तो टिल नाउ 53. एंड आई मस्ट से कि किसी कोचिंग से मुझे अभी तक खबर नहीं मिली है कि 10 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हों उनके. सो दिस इज इन अ वे I may feel self-congratulated, but I'm very happy for you people because this is your hard work. You people have done this work, and I want कि next year you people start this again. JNU Students for Change का next year you take the command and teach the students. So now I want small intro from your side. We can start with anybody of you. Just give small intro, and if you have any question, just ask that question also. I would go on to the documents and all formalities. आपको कैसे अपना affidavits बनवाने, particularly आपका एंटी रैगिंग affidavits कैसे बनेंगे, ठीक है. कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स के कुछ क्वेश्चंस you have, ठीक है. Few of you don't have ABC ID, so we will talk about the ABC ID also. ठीक है. Few of you had आपका मार्कशीट या डिग्री नहीं आई है, तो प्रोविजनल डिग्री का क्या है, तो वी वुड टॉक ऑन एवरीथिंग. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ होलिस्टिक सेशन वेयर यू वुड गेट आंसर ऑफ योर एवरी क्वेरी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट स्मॉल इंट्रो फ्रॉम योर साइड. You are hailing from which state and from when you are connected to JNU Students for Change? Just small intro. So any of you want to start? Okay. Deshraj is in library. He can't speak, but he had said he's from Rajasthan. Great, Deshraj. Deshraj, I know you. You were also one of the active member in the group. I remember your name. So congratulations, Deshraj. Again, another person, Rajashri. Why not you start? Because you are one of the most vocal I person. think, sir, one of the I think it would be actually better if we moved in an alphabetical order. है ना? Okay. Because I So, can't see your name in that way. Acha, one more thing. I had one more question. Right. Can we share the link to people outside Uh, if they want to actually, join this meeting? I know people from outside. There is another group for all people who want help. For them, we had a session in the evening today. This is basically exclusively for JNU Students for Change students because we want to basically discuss अच्छा things अच्छा अच्छा with you, है ना? ठीक है नहीं हाँ, नहीं नहीं बाकी लोगों के लिए no भी have worries no another worries no session in the worries evening because all are of our student in a way जो JNU आने वाले हैं, तो उनका सबका हेल्प करना हमारी ड्यूटी है in a way. But today I just wanted कि अभी के लिए we just talk to you people. आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो बाकी लोगों के I would send you the link जहाँ पे बाकी सभी सेंटर से not only political science students from any center can join and anywhere whether that they were connected to JNUSC or not. Okay, so वो Nitesh, tell me your state, your name and small intro. हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते भाई. और सभी मेरे भाइयों को नमस्ते, जो सबको जानता हूँ मैं लगभग इनमें। Okay. मेरा नाम है नीतेश Okay भाई. और मैं उत्तर प्रदेश का जिला एटा से हूँ।
ओके भाई, ग्रेट। हाँ, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, आपने भी काफी अच्छा जो पेपर बनाए थे वो भी बहुत एक नंबर के थे, हमने देखे थे, ठीक है। ओके। हाँ, और बट हमें सर एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने आपको मैसेज भी प्राइवेटली किया था, डायरेक्ट मैसेज, हाँ। कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि हमने पेपर किया है तो हम अपने ऊपर नहीं ध्यान देते, दूसरे जो बोलते हैं उनकी बातों में पड़ जाते हैं। जैसे मैं पड़ गया, अच्छा। तो मैंने जिससे भी पूछा कि भाई पेपर कैसा हुआ, सभी लोग बोल रहे हैं मैंने 75 किए, मैंने इतने किए, मैंने सिर्फ मैंने क्या 65 किए बोला था थे। आपको पहले दिन पर, यू हाँ, रिमेम्बर माई वीडियो ऑन यूट्यूब में बोला जो भी बोल रहा 75 65 प्लस भी तो कोई बोल रहा है तो मत मानो, ठीक है। ठीक है सर ना। हाँ। तो सर मैंने आपसे भी पूछा था, और भी एक टीचर हमारे जिनसे हमने पूछा था, पॉल हाँ। सर वाले, हाँ। ठीक है ना, और अपने दोस्तों से भी बात की तो सभी बोले थे भाई 65 किए हैं, तो मैंने बता दिया था लगभग उनमें 10 मेरे गलत जाएंगे, और मेरे 10 ही गलत निकले भैया। ओके, राइट। हाँ, तो बोले इतने में तो होगा नहीं उनकी फिर बात में तुम्हारा नहीं आना तो। बिल्कुल सही, और इस बात पे मैं भी बोलूंगा, मैंने हाँ, भी बोला था एक यूट्यूब चैनल के ऊपर कि डेफिनेटली कट ऑफ वुड गो टू 3, 68 तो मुझे भी नहीं लग रहा था। और मैंने भी, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि 200 के अराउंड मार्क्स, मैं बोला कि यार मुश्किल है, लेकिन आप एक जगह अपनी सीट सिक्योर कर लीजिए। और ये बात तो मैंने बोली थी कि 65 से ऊपर कोई भी बोल रहा है कि मैंने 70 कर लिए हैं, मैंने 75 में से 75 कर लिए हैं, वो सब बातें आप ध्यान ना दें, अच्छे से अपने पर करें। और वाट एवर जो भी है, अभी यू आर इन द जेएनयू, और उस चीज का खुशी मनाइए। तो नितिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी कोई। हाँ, तो बस मैं यही बोल रहा था कि भाई मैंने वो सोच के मैंने पहले यही सोच लिया कि मैं तो फॉर्म ही नहीं भरूं, फिर मैंने सोचा क्या पता कहीं भाग खुल जाए और नंबर आई जाए, तो इट्स इसलिए मैंने नॉट भर भी दिया हार्ड फिर। भाई, तुम्हारा हार्ड वर्क है, और बाकी लोग हाँ, सही है। तो आपने फॉर्म भरा और नाउ यू आर सिलेक्टेड, दैट्स अ इंटेलिजेंट डिसीजन यू हैव टेकन, एंड ग्रेट थिंग कि अभी आप आ रहे हो। कौन से कोर्स में आ रहे हो नितिश आप? टीआईएसएम? सर इंटरनेशनल रिलेशंस में, हाँ बट यार, मैंने ओके। तीनों क्वालिफाई कर रखे हैं, इसलिए मेरा दुर्भाग्य कि मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख दिया था, डर के कारण कि कुछ ना मिले तो यही दुर्भाग्य मिल तो जाए। नहीं बोलूंगा मैं, दुर्भाग्य कहते हुए यार, बहुत अच्छा कोर्स है, दुर्भाग्य कुछ नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, IR1 इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ जेएनयू, सो इट्स नॉट दुर्भाग्य। ठीक है, दुर्भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता है, आपकी मेहनत है, आपका सिलेक्शन हुआ है, एंड दैट्स द ग्रेट थिंग। ठीक है, सो ग्रेट नितेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू अगेन। बाकी कोई? थैंक यू भैया। ठीक है। बाकी जो आकाश या अंशिका, अंशिका इज इन ट्रेन yet said, so she can't speak. I can understand many of you are basically in journey, few are in for documents के लिए आपको जाना पड़ रहा है। so ये एक स्मॉल सेशन हम कभी दोबारा एकदम सारे मिलके भी कर सकते हैं, बट ये मैं चाहता था कि अगर इमीडिएट कोई क्वेश्चंस हो आपके, एंड वी वुड पुट इट इनटू द यूट्यूब चैनल आल्सो, सो व्हाट वुड हैपन कि जिनका भी क्वेश्चंस हैं, जो इमीडिएट क्वेश्चन है जो आपसे आ जाएंगे, वही क्वेश्चन सबके भी होंगे, सो दैट वुड हेल्प। सो बाकी किसी को बोल रहा हूँ, आकाश, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाए तो आकाश, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में, कौन से कोर्स में आपका हुआ Okay. है? Good morning, everyone, and good morning, Bhaiya. गुड And मॉर्निंग। first of all, I would like to thank because of your last those sessions. Actually, the last moment पे I was not able to revise, so वो videos बहुत ज़्यादा helpful थे, and I'll thank you for that. First of all, and secondly, I'm from basically Uttar Pradesh, Lucknow, and I graduated from Allahabad University in 2023 itself. So ओके, this was my ग्रेट। first attempt, ओह, मेरा भी and नहीं my हुआ था course फर्स्ट is अटेम्प्ट में तो। सही है, कांग्रेचुलेशन। uh, this was my first. Basically, my course is PISM ओके, politics, ग्रेट ग्रेट। and that's all. Just सही है। I think yours channel I can't thank enough. It is needless to say it was very helpful, especially for me. I don't know बेसिकली about others, but it was and also those tests. Actually, one more thing I'd like to point out. I also gave other tests, but they were just like copying difficult questions a bit ones so that we get stuck. But your test was just balanced. Like I got almost 58 to 60 questions correct, and this was similar in exam also. I got 59 questions correct in the real exam also. So that balanced test series also helped to gain confidence, and that's all Get I it would like so to say. soothing to hear from you people, and we just want ki basically ki JNUS is a not a charity organization, it is a movement। तो जब आप लोग आएंगे ना तो I would wish कि आप भी आकाश से कनेक्ट हो, और फिर आप अगली बार की बैच को पढ़ाएं, और जब जहाँ मैं बैठा हूँ अगली बार आप यहाँ बैठे हो, और कोई स्टूडेंट आपको बोल रहा हो कि आकाश भैया आपने जिस तरीके से पेपर बनाया था वो हमको बहुत हेल्प किया। सो आई Yes, yes, I definitely. That I would be a want you very people to take this legacy forward, because JNU culture जो है वो यही है। यहाँ पे we
जैसे मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था कि आईआईटी की कोचिंग करने वाले बच्चों में कोटा में इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इन अ सेंस कि 20 सुसाइड कल, इस साल का 20वां सुसाइड कल कोटा में एक स्टूडेंट ने कर लिया। सिमिलरली देयर वाज अ न्यूज फ्रॉम तमिलनाडु, एक नीट स्टूडेंट के फादर ने सुसाइड कर लिया जस्ट आफ्टर अ डे आफ्टर जो स्टूडेंट था उसने सुसाइड किया। व्हाई पीपल स्टूडेंट्स आर taking such a harsh decision because of this new system that we have created। एकदम पूरा एक तो कोचिंग का इतना ज्यादा प्रेशर हो गया बच्चों में, एंड वी डोंट वांट दिस थिंग्स। सो द रीजन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कट ऑफ इतना नीचे गिरा है, क्योंकि ये कट ऑफ इसलिए गिरा है कि बाहर जो कोचिंग है उसमें कचरा पड़ रहा है। मैं आई वुड लिटरली वुड से दिस कि कचरा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे नोट्स देखे हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज दे डूइंग कॉपिंग, एंड आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबॉडी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इतना इतना पैसा लेना सिर्फ सीयूईटी के एग्जाम, दैट इज एन एंट्रेंस एग्जाम, बच्चों का बीए का लेवल चेक करना, यू जस्ट वांट इज जस्ट स्मॉल गाइडेंस कि भाई कैसे करना है, कोई क्वेश्चन का पैटर्न, बट दिस हैज बिकम अ बिजनेस एंड जेएनयू नेवर एनकरेज मेकिंग एजुकेशन अ बिजनेस। एजुकेशन कैन नॉट बी अ बिजनेस, ठीक है? सो एजुकेशन हमेशा एक सर्विस होती है, एंड वी हैव टू टेक दिस इनटू दैट मोड। और मैं चाहता हूं, और हम फ्रॉम जेएनयू स्टूडेंट्स फॉर चेंज के सभी वॉलंटियर्स चाहते हैं कि आप लोग 53 पीपल यू हैड बेसिकली सेलेक्टेड, दिस इज आवर फर्स्ट बैच और 53, आई फील कि ये रिकॉर्ड जो है ये इसको आपको आगे लेके जाना है, ठीक है? सो दैट्स अ ग्रेट थिंग हियरिंग फ्रॉम यू आकाश कि आपको हमारे पेपर अच्छे लगे, एंड 2 पेपर आप भी अगली बार बनाए, ठीक है? तो हम ये पूरा ना सिस्टम चेंज करना चाहते हैं कि भाई ये कोचिंग का सिस्टम ही खराब है। बच्चों से यार, जो बच्चा गांव का बच्चा है वो कहाँ से अफोर्ड करेगा इतना पैसा सिर्फ जेएनयू आने के लिए, जहाँ पे 268 की फीस है। अब वो जहाँ जेएनयू में पढ़ने की तुम्हारी 268 की फीस लग रही है, उसकी कोचिंग के लिए यू हैव टू गिव 20 and 30,000, दैट इज नॉट जस्टिफाइड ना। सो नेक्स्ट एनीबडी एल्स, आई मे सीम सम थोड़ा सा इमोशनल, बट मैं थोड़ा इमोशनल हूँ इस सेंस में। भैया बीच में टोकने के लिए सॉरी फॉर दैट, बट आपकी बात बिल्कुल सही थी और मैं भी बड़ा आपसे इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी कोचिंग से। मैं लास्ट मोमेंट में, मुझे लगता है कि 20-25 दिन से ज्यादा नहीं जुड़ पाया हूँ। अगर कोचिंग जब मुझे पता चला तो मैंने जुड़ा, और जो आपका टेस्ट था मैंने भी लिया। लेकिन वो चीज, मुझे एक क्वेश्चन मुझे बार बार याद आता है कि जहाँ पे मैंने समझा कि एक्चुअली एग्जाम का डिमांड क्या है, जो आपने एक इन्वायरमेंट पे दिया था शायद 1992 रिवाल समिट। हाँ हाँ राइट, वो तो वो जो कंफ्यूज खानदानी कर दिया था आप लोगों को थोड़ा है। हाँ हाँ हाँ, तो वो वाला चीज जब आपने बताया तो मैं समझा कि एक्चुअली यहाँ पे चाहिए क्या, जो हम लोग रट्टा मार रहे हैं क्वेश्चन का या पढ़ रहे हैं ये। तो वो चीज मुझे अभी भी याद आता है कि वहां पे मुझे क्लिक हुआ कि क्या, और वो चीज मैं, हाँ, मैंने पहले अगर गुड मॉर्निंग। एक सेकंड हर्ष, एक बार अजीत को आप बात कर, एक बार आप 2 मिनट आप रुक जाइए, ठीक है। ठीक है? हाँ हाँ अजीत, कंप्लीट योर। हाँ, तो वो चीज मुझे बार बार याद आता है कि वो चीज आपसे एक बहुत बड़ी चीज मुझे सीखने को मिली कि एक्चुअली एग्जाम की डिमांड क्या है, कि हमको सीखना और सोचने को कोई मजबूर करता है। हम लोग को केवल पढ़ते रहना नहीं है, सोचना भी है रुक कर। और यही चीज आपको भी जेएनयू में भी होगी कि जेएनयू में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई प्रोफेसर जो है वो दे वुड एक पैटर्न जो जेएनयू फॉलो करता है, जो आप सबको जैसे ही आप एंट्री करेंगे तभी से समझना स्टार्ट हो जाएगा। दे वुड नॉट लेट यू व्हाट टू थिंक, दे वुड से हाउ टू थिंक। और हाउ टू थिंक का मेन चीज ये होता है कि एजुकेशन का मतलब यही होता है, ये नहीं कि मैं आपको बता दूं कि ये करो, आपको ये करना है कि कैसे करना है, वो एक मेन क्वेश्चन होता है। हाउ टू थिंक जो है वो आपको जेएनयू डेवलप करेगा, और उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम्स भी क्लियर करनी होती हैं। तो आपको कौन से सेंटर मिला है अजीत? पीआईएसएम आया? पीआईएसएम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा मतलब मेरा एक फेवरेट था, और मेरा शुरू से ही था कि इसमें मुझे ही जाना है, इसमें ही जाना है। और बहुत अच्छा पीआईएसएम, बहुत अच्छा सेंटर है। मैंने देखा है कि अपने 22 बच्चों का पीआईएसएम में हुआ है अपने ग्रुप से। यस यस सर। और मेरे सीनियर हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो जेएनयू में है, तो आल्सो रिकमेंड मी, जो भैया लोग हैं जो अलग से पीएचडी भी कुछ लोग कर रहे हैं एनरोल्ड हैं। अच्छा, ओके, तो वो लोग भी, उनसे भी रिकमेंड, लेकिन ये मेरा फेवरेट था और मुझे जो पसंद था वही मुझे मिला है। बहुत सही, बहुत सही। और क्या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अजीत भाई? हाँ यस, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही था। अच्छा, तब तो आप मेरे सीनियर ही हुए हैं। ग्रेट, देखो कितना कनेक्शंस बन रहे हैं। हम अभी मिले भी नहीं, अभी तो जेएनयू आएंगे तो आपको बहुत सारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मिलेंगे यहाँ पे।
तो हाँ यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ग्रेट अजीत, आपसे मिलके अच्छा लगा। और कोई किशन, हर्ष कुछ बोल रहे थे, हर्ष। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाई। भैया थैंक यू, आपने जो प्रिपरेशन करवाई उसका फल मिल गया। फल मिल गया? कौन से सेंटर में फल मिला है आपको? भैया सेंटर वो चॉइस गलत कर दी थी, एमए पॉलिटिकल साइंस POLM मिला है यार भैया, PISM भी मिल जाता पर लेकिन कोई ना। लेकिन आपको चॉइस गलत क्यों लग रही है CPS की? आपको यार क्या क्योंकि करना है? भैया देखिए सीधी सी बात, अगर देखो आपको ये देखो 3 सेंटर है यहाँ पे, CPS, PISM और IR। पोलम को हम CPS बोलते हैं, और CPS इज द, आई एम नॉट सेइंग कि PISM अच्छा नहीं है, बट CPS इज द बेस्ट सेंटर इनटू JNU। एंड द रीजन बीइंग POLM भी बेस्ट। एकेडमिक्स ओरिएंटेशन अगर किसी सेंटर की JNU में है पॉलिटिकल साइंस की, तो वो POLM है। PISM यूजुअली स्टूडेंट्स प्रेफर भी, वो थोड़ा सा आपको UPSC में हेल्प करने के सेंस में देखते, बाकी वो आप देखेंगे कि उसका भी पैटर्न थोड़ा अलग है। बट CPS जो है वो एकेडमिक्स ओरिएंटेड, और सबसे अच्छे प्रोफेसर, अगर मैं, बिकॉज आई हेल्प फ्रॉम CPS, मैं CPS में ही हूँ, एंड आई कैन से दिस थिंग टू यू, CPS के जो प्रोफेसर है वैसे प्रोफेसर आपको नहीं मिलेंगे, और PISM के बच्चे भी CPS में क्लासेस करने आते हैं। तो योर चॉइस इज नॉट रॉन्ग, नॉट एट ऑल रॉन्ग। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि PISM और IR इज बैड कोर्स, दे आर इक्वली गुड, बट वो अपने हिसाब से अच्छे हैं। लेकिन प्रोफेसर्स की जब बात आएगी, यू वुड सी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर। अजय गुड़ावर्ती इज इन CPS, प्रोफेसर विदु वर्मा इज इन CPS, प्रोफेसर आशा सारंगी इज इन CPS, द्वापन भट्टाचार्य इन CPS, ठीक है, MN ठाकुर इज इन CPS, द ऑल रिनोड पीपल यू वुड गेट इनटू द CPS। ठीक है, तो भैया डोंट वरी अबाउट द कोर्स। ठीक है, और कोई? भैया हाँ, भैया हॉस्टल का क्या सिस्टम है यहाँ पर? हॉस्टल का बात करेंगे। हॉस्टल का बेसिकली सिस्टम ये है कि हॉस्टल जो मिलेगा आपको, वो आपकी अकेडमिक्स, आपके पॉइंट्स वाइज सिस्टम होता है। तो पहला सेंस ये होता है आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, उसमें 4-5 क्राइटेरिया है। तो मोस्टली जो दिल्ली के बच्चे नहीं है, दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं, उनको सबको हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, जो दिल्ली NCR के रीजन के बाहर के स्टूडेंट हैं, उनको सबको हॉस्टल मिलता है, बट वो एक प्रोसेस में मिलता है। भैया एक चीज जैसे जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MA के स्टूडेंट को सिंगल बेड मिलता है, अलॉटमेंट होती है। क्या क्या मिलता है? सिंगल बेड मतलब एक 1 पर्सन को नो 1 नो बेड नो, अलॉट होता है। वन पर्सन सिंगल सिस्टम रूम नहीं है यहाँ यार। पे मिलता JNU में आपको डबल ही मिलता है, 2 लोग ही रहते हैं एक कमरे में। ठीक है, तो वो तो नहीं है सिंगल वाला सिस्टम JNU में, वो PhD में है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हॉस्टल का वो भी एक चीज है जो आप यहाँ आएंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा क्रंच है यहाँ पे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हॉस्टल की सीट्स बढ़ी नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स की संख्या है, एक तरीके से नए कोर्सेज खुले हैं, लेकिन एक नया हॉस्टल बन रहा है, वो भी शायद अभी आप आएंगे तब तक ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम जो है वो 2 सीटर का सिस्टम है, 1 सीटर सिस्टम नहीं है MA में। ठीक है, और दूसरा ये है कि हॉस्टल जो मिलेंगे आपको, वो आपकी कैटेगरी डिपेंड करती है, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल कैंडिडेट, वो डिपेंड करता है। और लगभग दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट उनको सबको मिल जाता है, लेकिन ये एक स्टेप वाइज मैनर में मिलता है। ऐसा नहीं हो कि पहले दिन ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा जिस दिन आप JNU आएंगे। कुछ टाइम के लिए आपको डॉर्मेट्री अलॉट होता है। ठीक है, और डॉर्मेट्री में कुछ ज्यादा बच्चे रहते हैं, फिर डॉर्मेट्री से आपको हॉस्टल में शिफ्ट किया जाता है। तो वो हर 15 दिन में एक लिस्ट आती है, 15-20 दिन में, और उसके थ्रू आप प्रोसेस में जाते हैं। तो मोस्टली उन स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जो दिल्ली के बाहर के हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स OBC EWS है, उसका 2nd नंबर है, ऐसे अनरिजर्व्ड 3rd नंबर, इस तरीके से आपको मिलता है। ये पैटर्न आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और आप थोड़ा सा उससे हो जाएंगे। जब पहली बार आते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसी प्रोसेस है, बट वंस यू वुड गेट इनटू JNU, यू वुड फाइंड अकोमोडेशन एंड ऑल थिंग्स, तो वो भी इश्यू नहीं है। अभी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो बनवाने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? भैया एक हॉस्टल वाले लिस्ट में उसमें ये दे रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेइंग गेस्ट बिल, ये वाटर बिल, इसमें से क्या मतलब आपको 2 प्रूफ देने होते हैं बेसिकली, कि आप जो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसको एक प्रूफ देना होता है दिल्ली में वो कहाँ रह रहा था। ठीक है, वो जरूरी होता है कि वो दिल्ली में बाकी जो बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको करना क्या होता है, आपको 2 प्रूफ देने होते हैं अपना रेजिडेंसी का। तो एक आप कोई भी वो 2 प्रूफ दे सकते हैं, जिनमें से आपका बिजली का या पानी का बिल हो सकता है घर का, ठीक है, या घर का अगर आपके पास
सर्टिफिकेट है तो जिसको बिजली का बिल तो भैया घर के अपने नाम पे नहीं होगा ना, किसी घर के फैमिली हाँ तो मेंबर के पापा नाम के नाम पे होता है ना बिजली का बिल। हाँ हाँ। तो बस तो कोई दिक्कत नहीं, पापा का नाम तो आपके नाम से जुड़ा ही है, या मम्मी के नाम पे है तो मम्मी का नाम जुड़ा है, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। बस वो बेसिकली आपका एड्रेस होना चाहिए उसमें घर का, जो आपने परमानेंट एड्रेस डाल रखा है वो आपके किसी 2 डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। तो आप वोटर आईडी है तो वोटर आईडी चलेगी, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 डॉक्यूमेंट आपके। अगर बिजली वाला, अगर जैसे परमानेंट एड्रेस है और बिजली वाला कहीं उसमें और कहीं आपका रूम है नहीं वहां का एड्रेस नहीं, और का नहीं है, हॉस्टल के लिए आपको 2 ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जिन पे सेम एड्रेस हो जो परमानेंट एड्रेस आपने अपने फॉर्म में डाला है। दिस इज एज सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो भैया क्या वो फिजिकल वेरिफिकेशन पे लगेगा क्या वो? हाँ वो फिजिकल वेरिफिकेशन पे लगेगा 2 डॉक्यूमेंट। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे अब ऑनलाइन आ रहा है तो ऑनलाइन चल जाएगा ना, हाँ उसको हाँ जैसे बिल्कुल, हम ऑनलाइन की निकाल, फोटोकॉपी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जो आपका बिजली का बिल है उसकी फोटोकॉपी निकाल के ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका वो फिजिकल वेरिफिकेशन में चल जाएगा। हाँ हाँ एकदम चल जाएगा। बस उसकी मेन अच्छा चीज ये है कि आपके 2 दादा डॉक्यूमेंट में आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, बस सिंपल चीज है, जिससे आपको हॉस्टल दिया जा सके। वो इसलिए किया जाता है कि आपका हॉस्टल के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो उसमें पानी का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल यूजुअली होता नहीं है गाँव में, जो गाँव से बच्चे आते हैं उनका, ठीक है। तो बिजली का बिल मिल जाता है, या आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड हो सकता है, सॉरी वोटर आईडी तो वोटर आईडी हो सकती है, आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है तो आधार कार्ड ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। 2 डॉक्यूमेंट चाहिए बस, ठीक है। नहीं, वो तो ऊपर 2 डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, एक नीचे बिजली वाला में वो एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कह रहा है, ऊपर वाले में तो वो इनका पासपोर्ट, वोटर कार्ड, बिजली आधार तो कार्ड और हाँ मैं बोल रहा एक बिजली का और एक दूसरा हो जाएगा। तो एक बिजली का या पानी का जो भी है एक वो रखिए और दूसरा वो रखिए। अगर बिजली पानी दोनों नहीं है तो उस केस में आप डाल सकते हैं अपना उसी सेक्शन में, डोमिसाइल उसी सेक्शन में आप बिजली पानी वाले में अगर बिजली पानी दोनों नहीं है तो आप वो भी डाल सकते हैं अपना, हाँ डोमिसाइल। तो डोमिसाइल का ऑप्शन होगा वहां पे, अगर नहीं है तो भी डाल सकते हैं। तो बस 2 डॉक्यूमेंट चाहिए आपके, ठीक है। ओके। अच्छा, दादाजी के नाम से अगर बिजली का बिल वगैरह कोई नहीं पिताजी के नाम चलेगा, से ना हो? एकदम अरे एकदम चलेगा। बस मेन चीज ये है कि आपका एड्रेस होना चाहिए उसके, भैया ठीक है। हेलो भैया, हाँ भैया एक बात बताओ, ये ऑप्शन तो आ ही नहीं रहे डॉक्यूमेंट अपलोड के। ऑप्शन थोड़ा, अगर आपने पेमेंट अभी किया तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा टाइम लेता है वो, है ना, हाथों हाथ आपका ऑप्शन शो नहीं हो, ठीक है। अच्छा, तो और दूसरी बात ये बताओ कि जैसे मतलब ओबीसी में हूँ मैं, हाँ ठीक है, तो पुराना सर्टिफिकेट दे सकता हूँ अभी, या मतलब नया करवाऊँ? देखिए अभी आप पुराना ले आइएगा लेकिन नए के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा। यूजुअली क्या होता है 6 महीने तक ये ओबीसी सर्टिफिकेट काम आता है, ठीक है। तो 6 महीने से पुराना अगर है तो अभी आप लेके आ जाइएगा, लेकिन अभी तुरंत आप अप्लाई कर दीजिए। वो चाहे आप आज ही अप्लाई कर दीजिए। वो यूजुअली, आप कहाँ से हैं? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ अलवर। से हैं? अलवर। अलवर, ठीक है। मैं भी राजस्थान से हूँ भाई। तो राजस्थान में ई मैं भी मित्र में जाइए आप और ई मित्र पे अप्लाई कर दीजिए। राजस्थान में आजकल तो 5-7 दिन लगता है मैक्स टू मैक्स अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में, ठीक है। तो बनवा लीजिए अपना नया, सेंटर वाला बनवाइएगा, स्टेट वाला मत बनवाइएगा। जेएनयू के लिए सेंट्रल 2 बनते हैं, ओबीसी एस अपना स्टेट का और सेंटर का, सेंटर वाला बनवाइएगा, ठीक है। भैया आप कहाँ से हो राजस्थान में? मैं राजस्थान में पिलानी से हूँ भाई। अरे भाई, मैं तो वहाँ पे अकेला हूँ। अच्छा चलो मिलते हैं। राजस्थान से बहुत सारे, अरे हर स्टेट से जेएनयू में लोग हैं, हर स्टेट की डाइवर्सिटी है यहाँ पे तो, और वही खासियत है जेएनयू की। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ इंट्रो भैया देना है? वो जैसे आपने कहा सेंट्रल के लिए है, तो मेरा क्या है ईडब्ल्यूएस है, तो क्या वो मेरे पास सेंट्रल का नहीं है, वो स्टेट का ही है? ईडब्ल्यूएस आपका सेंटर और स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है आपकी। आप कहाँ से हैं? यूपी से? हाँ भैया यूपी से। यूपी, तो यूपी में क्या आपका क्राइटेरिया अलग अलग है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ऐसा चीज है कुछ स्टेट अपना अलग से बनाती हैं लेकिन सारी स्टेट नहीं नहीं, बनाती। तो आप अपना sorry to इनकम interrupt, but सर्टिफिकेट ले आइए। नहीं, नहीं, सेंटर का भैया EWS is क्या होता है same ना, for जैसे UP यूपी and central यूपी government because both have नहीं, same यूपी में criteria. हाँ तो सेम क्राइटेरिया, तो यूपी फिर में जस्ट कीप दैट। मैं बोल रहा हूँ जैसे राजस्थान में डिफरेंट क्राइटेरिया है। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस का 2 सर्टिफिकेट बनता है, सेंटर का और स्टेट का अपना अलग से क्राइटेरिया है। तो उस केस में यू नीड सेंटर वाला, बट यूपी हैड द सेम क्राइटेरिया। और यूपी यूजुअली क्या होता है, अगर यूपी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेम क्राइटेरिया तो उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा फॉर यूपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप उस पे जो था जेएनयू का जो निकाला, उस पे लिखा हुआ है कि
तहसीलदार से नीचे लोअर अधिकारी द्वारा नहीं बना होना चाहिए, अगर उसके ऊपर है तो आप लगा सकते हैं स्टेट वाला भी। वो इन आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी बनाता है ना स्टेट में, वो माने जाएगा। उसमें वो तहसीलदार इसलिए लिखा गया है कि कुछ स्टेट में क्या होता है, जैसे आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं। उस केस में इनकम सर्टिफिकेट जब आप लगाएंगे वो तहसीलदार से नीचा नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी बनाता है ना आपके यहाँ पे, एक अथोराइज्ड पर्सन अथॉरिटी होती है जिसको दिया जाता है। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उसके लिए हर स्टेट में अथोराइज्ड ऑफिसर होता है, तो वो एसडीएम भी हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है, या कोई और राजस्व अधिकारी भी हो सकता है। तो आपकी स्टेट में जो भी बनाता है बस ऑथेंटिक होना चाहिए। वो तहसीलदार वाला सारे आपको वो फॉलो नहीं करनी है जो जेएनयू में लिखा हुआ है, क्योंकि जेएनयू में आपकी जो है हर एक चीज का अलग पैटर्न दिया हुआ है, बट आपको हर चीज उस पैटर्न में नहीं बनवानी है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको जेएनयू वाला नहीं निकालना, आपका जो भी स्टेट बनाता है वो निकालना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं कि आपको जेएनयू वाला फॉर्मा में बनवाना है, जो भी आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट दे वो चलेगा। ठीक है, ओके भाई। बस इट शुड बी एन ऑथराइज्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दैट्स ऑल। ऑथराइज्ड का भैया मतलब आपकी स्टेट को। एंटी रैगिंग का थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि उसमें नॉन जुडिशियल स्टैंप वाला इशू आ रहा है। उसमें तो देखिए भैया उसमें क्या होता है, नोटेरी। एक सेकंड आपका मैं ये बता देता हूँ। एंटी रैगिंग आपको दो बनवाने हैं, एक आपका खुद का, एक आपके गार्जियन का। और उसमें नॉन जुडिशियल का मतलब ये है कि आपका बेसिकली अगर आप ये दो जगह से आप बनवा सकते हैं। एक आपके कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में नोटेरी होती है, वहां आप जाके बोलेंगे कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे मेरे को ये बनवाना है, तो वो सेम टू सेम तो जेएनयू वाला जो पैटर्न है वो वहां पे जो लिपिक होता है, बाबू जो होता है वो लिखेंगे और वो आपको बना के दे देंगे। तो उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है। दूसरा है जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं, तो दिल्ली में ये सिस्टम होता है कि आपका पूरा पैटर्न जो है वो कियोस्क करते हैं। तो जैसे राजस्थान में ई मित्रा होते हैं, ई कियोस्क होते हैं जो खुद बना के दे देते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम है कि आप दिल्ली आए तो दिल्ली में भी, दिल्ली वाले स्टूडेंट दिल्ली में आके भी आप बनवा सकते हैं। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। नॉन जुडिशियल का सीधा सा मतलब है आप जब जाएंगे उनको बोलेंगे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे बना दीजिए, वो बना देंगे। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, नहीं तो आज मेन बात है कि हम इसमें तो लोगों भैया को भैया एक बार इसका पूरा प्रोसेस बता दीजिए आप, क्योंकि हम लोगों ने नहीं, जो हम लोगों ऑनलाइन था को जो वो तो ऑनलाइन कर तो दिया, आपने लेकिन कर उसके लिया, बाद जो नहीं उसमें समझ लिंक में आ रहा दिया क्या गया करना। है, उसमें ऑनलाइन लिंक जो भी दिया। देखिए, ऑनलाइन जो भी आप बनवाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन जो करवाएंगे आपका जो बन जाएगा ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई किया? क्या आपको जेएनयू लिंक दे रहा है ऑनलाइन का? हाँ वहाँ हाँ पे भैया, वो हाँ ईडीसी की जेएनयू साइट लिंक की दे लिंक रहा दे है। रहा हाँ, है। वो जो लिंक ऑनलाइन जेएनयू ने दिया है उसको आप प्रिंट करवाएंगे, जो भर के, वो भरने के बाद आपको ना पीडीएफ में मिलेगा कंप्लीट। हाँ हाँ पीडीएफ मिला है। उस पीडीएफ को आपको स्टाम्प लगवाना है नॉन जुडिशियल। ठीक है, वो हाँ कहाँ से लगेगा? हाँ आपके कोर्ट से। ठीक है, जहां से हम ई मित्र सर्टिफिकेट, अपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तहसीलदार ऑफिस से, जहां से हम्म। हम अपना ये जो जैसे अभी हमने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बात की, कास्ट सर्टिफिकेट की बात की, तो वैसे ही आप जो वो फोटो कॉपी है ना उसके ऊपर वो रिकॉर्ड होती है कोर्ट में। नॉन जुडिशियल स्टाम्प का मतलब ये तो नोटेरी होती है उसकी। तो वो बस आपको नोटेरी करवानी है बेसिकली, बस दिस इज द वर्क। नोटेरी होती है, वो नोटरी जैसे ही होगी उसके बाद उस पे साइन होते हैं उसके, और वो कंप्लीट। तो आपके जो भी नियरेस्ट कोर्ट है, बेसिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट है, उसमें नोटेरी की ऑफिस होता है, या फिर बिना कोर्ट के भी नोटेरी ऑफिसेज होते हैं। तो आप एक बार अपने आसपास पता कर लीजिए, दिल्ली में बहुत सारे हैं। अगर आप जेएनयू आएंगे तो जेएनयू में भी हो जाएगा ये, वहां पे भी काम हो जाएगा ये। आप जेएनयू जब नहीं अपना, ये जो अभी अभी हम लोग को हेलो भैया, एक अपलोड बात कर, बता दो। हाँ अभी जो हम लोग को अपलोड करना है क्या हाँ, ये वाला, तो ये ये आप वाला यही अभी कर बना, दीजिए, अपलोड यही कर दीजिए आप, नो इशू, अपलोड ये कर दीजिए। अपलोड यही करते बिना बिना स्टैम्प के। बिना स्टाम्प के भी कर सकते हैं आप, नो इशू, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। अगर आपके पास नजदीक में है तो फिर आप स्टाम्प लगवा के कर दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं कि इससे आपको कोई। भैया ये आज सैटरडे संडे, अच्छा ये 21 तारीख की लास्ट डेट अपलोड करने की कि कुछ आगे तक है? डॉक्यूमेंट्स की 21 तारीख नहीं है लास्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का 28 है, 28 हाँ, ऑफर लेटर में लिखा है। 21, हाँ आप पढ़िए ध्यान से, 21 है आपकी फीस पेमेंट और सीट ब्लॉक की। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया है तो आपकी सीट ब्लॉक नहीं होगी। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि तुरंत जाके अपनी सीट ब्लॉक कीजिए, पेमेंट कीजिए 268 रुपए फीस का, उसके बाद ही आपकी सीट ब्लॉक होगी। मान लीजिए अगर आप पेमेंट नहीं किए तो आपकी सीट किसी दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो ये गलती मत कीजिए, ठीक है। सभी लोग सबसे पहले 21 तारीख से पहले अपना पेमेंट कीजिए, ठीक है, वो और जरूरी है। भैया जिस दिन भैया हॉस्टल कब तक अलॉट होगा? हॉस्टल का देखो प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है। हॉस्टल जब आप जेएनयू आ जाते हैं तो उसके बाद आपको धीरे धीरे, जैसे आपकी मैंने अभी बताया कैटेगरी पे डिपेंड करता है आपकी,
तो यूजुअली स्टार्टिंग में अगर आप SC ST स्टूडेंट है तो थोड़ा जल्दी मिल जाता है, बाकी कैटेगरी स्टूडेंट है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, कई बार 2 महीने भी लग जाता है, तो कई बार 1.5 महीने भी लगता है कि, पर वो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना होगा उस चीज के लिए। जैसे DU में जब हम आते हैं तो हॉस्टल का प्रोसेस बड़ा खराब है, ठीक है, आपको PG लेके रहना पड़ता है, और JNU में पिछले 2 साल से एक सिस्टम हो गया है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा अकोमोडेट करना होता है, खैर वो जब आप आएंगे तो हो जाएगा अकोमोडेशन, यहाँ पे JNU स्टूडेंट्स के पास भी रह लेते हैं बच्चे थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद आपको अलॉट होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, 1-2 महीना शुरुआत में, ठीक है। भैया क्योंकि कल एक सीनियर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आप जिस दिन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे अगर तो उसी दिन से आपको डॉर्मेट्री वगैरह मिल जाता नहीं है नहीं नहीं, अब मतलब। वो क्राइटेरिया नहीं है, डॉर्मेटरी का पहले हुआ करता था, अब नहीं है, अब उसी दिन नहीं मिलता है, उसी दिन बहुत ही स्पेसिफिक है, अगर आप PWD स्टूडेंट है तो आपको उसी दिन मिल जाएगा, अगर आप ओके भैया। PWD स्टूडेंट्स को उसी दिन मिलता है, लेकिन बाकी SC ST स्टूडेंट्स को डॉर्मेट्री मिलती है, उसकी लिस्ट आती है, तो उसी दिन नहीं मिलता है, ठीक है, वो टाइम लगता है, तो ये आप दिमाग में अपना मेंटली प्रिपेयर होकर आइए कि उसी दिन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये तो मैं आपको वो भी नहीं दूंगा कि रॉन्ग होप नहीं दूंगा, पर हम यहाँ पे अकोमोडेट करवा लेंगे, तो अकोमोडेट हो जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत सारे लोग होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे आपको महीने 1.5 महीने बाद तो मिलना स्टार्ट हो जाता है, और कई बार अगर पहली लिस्ट जैसे ही अगर आप SC ST स्टूडेंट है तो आपको तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाता है, 5-7 दिन में आपकी लिस्ट आ जाती है, लेकिन तुरंत उसी दिन आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। भैया हेलो भैया क्या सर भैया लास्ट मेरे क्लासेस सितंबर तक मिल पाएगा या फिर? भैया हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी? आपकी क्लासेस एकेडमिक कैलेंडर आपने देखा, एकेडमिक कैलेंडर है JNU का, उसी के हिसाब से होंगी, तो आपका एक बार मुझे एकेडमिक कैलेंडर देखना होगा, टू रेफर टू दैट, वो आपका एक बार एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही होंगी, टाइम मिलेगा थोड़ा आपको, तुरंत नहीं होगी। सर भैया यूँ बोल रहे हैं कि नवंबर में स्टार्ट होगी। नहीं नहीं, नवंबर नहीं है मेरे भाई, नवंबर में नहीं होगी, एक सेकंड मुझे एकेडमिक भैया ये जो टोकन नंबर जनरेट होता है जिस टाइम पे होता है, अगर मान लीजिए उससे लेट नहीं हो सकते, मतलब कुछ लेट हो गया हो सकते हैं पर होइएगा मत, ठीक है, हो सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन हो JNU में कोई भी, एक तो ये याद रखिए JNU में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका सिलेक्शन रिजेक्ट नहीं हो सकता है, ना ही अगर आप सही टाइम पे नहीं आए तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, आपने एंट्रेंस किया है तो यू आर बेसिकली, अब JNU में एडमिशन आपका राइट है, तो बस इतना कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी सी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अगर आप हो सकता है तो उसी टाइम पे आइए टोकन के हिसाब से, तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, अगर आप लेट आए तो थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बस इतनी बात। भैया क्या सितंबर लास्ट तक अलॉटमेंट हो जाएगा हॉस्टल के या फिर उसके बाद भी जा सकते हैं? पहले आपने एक तो हॉस्टल की भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, हॉस्टल कैसे होगा क्या होगा वो सब आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। इलाहाबाद में सर भैया यही होता है, 2-3 महीना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी लग जाता है। सेम चीज है, पहले JNU में नहीं लगा करता था, पहले से स्टार्ट हो जाएंगी ना, मतलब हॉस्टल एकोमोडेट होने से पहले तो हमें कहीं लेकर रहना पड़ेगा। वो सब हम कर लेंगे सिमी, आप एक बार JNU आइए, हॉस्टल पे हम पूरा एक है ना डिस्कशन रख लेंगे एक दिन, ठीक है, अभी इमीडिएट कंसर्न हमारी होनी चाहिए एडमिशन प्रोसेस, मैं समझता हूँ हॉस्टल एक मेन रीजन है कि हम जब आते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि रहना कहाँ है क्या है, लेकिन वो बहुत ही इजी प्रोसेस है, अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वंस यू डू ऑल द थिंग्स वो बहुत आसानी से हो जाता है, तो आपको हॉस्टल मिलने में अगर 1.5 महीना भी लगा ना तो यहाँ पे इतना हम सिस्टम, हाँ भैया थोड़ा गार्जियंस का कंसर्न है ना कि वहां पे अगर आप जा रहे हो फिर आप कहाँ रुकोगे कहाँ नहीं मैं रुकोगे, इस वजह बिल्कुल समझता हूँ गार्जियन का कंसर्न है, तो मैं आपको कांटेक्ट करवा दूंगा, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट से, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, जब तक आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा तब तक, ठीक है, तो ये JNU स्टूडेंट्स और चेंज के जो बच्चे हैं 50-53, इनका तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, आपको अकोमोडेशन भी हो जाएगा, आपका सारी चीजें हो जाएंगी, आप तो बस अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए, ठीक है, जब तक हॉस्टल नहीं मिलेगा तब तक भी आपको अकोमोडेशन का करवा लेंगे प्रबंध, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हॉस्टल वाला आई थिंक अब क्लियर हो गया। हेलो, हाँ हेलो, हेलो भैया, हेलो हाँ हाँ हेलो, बोलिए am I audible? और वो इंजाम बोल रहे हैं, हाँ इंजाम बोलिए आप। Yeah. My name is Inzam. I'm from Kerala. ओके ओके सॉरी, हम हिंदी में बोल रहे थे, हाँ हाँ इंजाम, Okay. यू आर इन विच सेंटर? Actually, I have a doubt. I'm in PISM. PISM, great great, okay. Yeah. I have a doubt regarding migration certificate. Okay, migration certificate, so you don't have migration certificate right now?
Actually, I have got all other certificates like professional certificate, consolidated mark sheets and all. Okay. But for migration certificate, I have to apply separately and pay a fees of 500 rupees. Okay. So, is it possible to upload the transfer certificate instead of migration certificate? Will they accept that? No, just put an extension form on the migration certificate. Just put an affidavit pro forma you have there on the portal. Just fill that and put that extension form on their own. You don't need to put the TC this transfer certificate on that place. Just put the extension certificate. ठीक है? You know the So, extension certificate what is there. about the there is also another form called undertaking for migration certificate. What about that? That undertaking and extension. I'm using the same word. There are undertaking, two kind of undertaking are there. One for JNU students, so you don't have to fill that. That is only for the JNU students. ठीक है? Then the another undertaking. So just put there on that. ठीक है? So that is basically extension form only. So but don't put TC on that place. ठीक है? It may create an issue because they would say कि you are not uploaded right direction on the right place. So just put the affidavit or extension form. And how much time it would take? Migration certificate, how much time it would take? I think within 10 days I will get So it. when you would come for physical verification, it would be I think you would be having the migration certificate by then, right? When you would come for the Yeah, but not sure. I am so applying through post, so it will take time. even if it would take time, you would be getting 45 days by filling an extension form. ठीक है? So that's Okay, not a okay. worry. ठीक है? So for now, just put an affidavit on that place. Affidavit in a way, an extension form. ठीक है? You have to just sign कि Okay, I got it. I would produce it when my document would be completed. I would produce. Until then, give me whatever this performa is there. So that relaxation you would get, right? Thank you, bro. Okay, thank you. भैया ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, हम्म हेलो, ये भूमि संरक्षक अधिकारी से मैंने साइन करा लिया तो वो ये काफी होगा ना? No, it is a gazetted officer ना. मुझे पता नहीं आपका स्टेट का थोड़ा सा डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट का. बट इफ इट इज अ गेजेटेड ऑफिसर मतलब उनके पास खुद की सील है. अगर उनके पास खुद की हाँ सील है वो तो बस लगाए हो जाएगा. तो वो लगाए हैं भूमि संरक्षण अधिकारी। नहीं सर, लेकिन सचिन भैया हमारे फॉर्म में तो लिखा हुआ है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, वो करना कंपलसरी है क्या? वो कंपलसरी है इन केस यू डोंट हैव एनी गैप. ठीक है? अगर अच्छा आपके अच्छा पास कोई अच्छा गैप ईयर नहीं है तो दैट इज कंपलसरी. ठीक तो है? दैट इज कंपलसरी। लेकिन इफ अच्छा, यू हैव एनी गैप ईयर, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं सोचिए, हाँ जैसे मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ हाँ कोलकाता हाँ में, ओके. मैं सो कोलकाता से ही हूँ। हाँ हाँ तो मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी के क्या वाइस चांसलर से करवाना होगा या हेड ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट से करवाना होगा? ऑफिस आप बस जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिस जाइए. ठीक है? एडमिन में ऑफिस में जाके बोलिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जेएनयू के लिए. मेनी स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी. ठीक है? राइट। सो जस्ट गो इन देयर ऑफिस एंड टेल देम कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए. बाकी अब उनका प्रोसेस है कि वो आपके रजिस्ट्रार से साइन करवा के देते हैं या वाइस चांसलर से करवा के देते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। यू जस्ट टेल देम कि मुझे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए. हाँ, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। ये हम लोगों ने मैंने जो बनाया भैया वो इंटरनेट से एक पेज डाउनलोड करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस पे नाम लोगों उनसे सिग्नेचर करा लिया है। वो आपने किससे साइन किसने करवाया? किससे करवाया आपने? भूमि संरक्षक अधिकारी बता दो। आपका गैप है 1 साल का? हाँ गैप है भैया। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, चलेगा, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं. को तो वो मतलब भूमि संरक्षक अधिकारी कर सकते हैं ना? अगर मैंने बोला ना शील है तो वो कर सकते हैं. गेजेटेड ऑफिसर का मतलब यही है कि ही हैज खुद की सील, मतलब खुद की मोहर, खुद का स्टाम्प, अगर वो है उसके ऊपर तो चलेगा. अगर सिर्फ साइन है तो फिर नहीं चलेगा. नहीं तो मोहर लगाए हैं वो बस तो हो गया, बस चलेगा, एकदम दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, थैंक यू। अभी क्या भैया उसके लिए एक्सटेंशन डाल सकते हैं, क्योंकि मैं अभी दिल्ली पर हूँ और यहाँ कोई बनाएगा नहीं फिर उसके लिए. दिल्ली में है आप और आपका क्या गैप है आपका? हाँ मेरा भी गैप ईयर है. दिल्ली में आपका अगर देखिए कोई गवर्नमेंट डॉक्टर या कुछ है तो कर सकते हैं, अगर वरना आप एक्सटेंशन फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 45 डेज तक एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको.
ठीक है। जैसे अभी मैं ऑनलाइन उसको डाल दूं, मेरे को 2-3 दिन पे, क्योंकि या 2-3-4 दिन पे मिल जाएगा वो ऑनलाइन शायद से पोर्ट सीट। एक्सटेंशन फॉर्म, और एक्सटेंशन फॉर्म आपको इसीलिए दिया गया है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अभी इमीडिएटली नहीं है तो जस्ट पुट दैट एक्सटेंशन फॉर्म, उसमें लिख दो कि एक्सटेंशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आई डोंट हैव दिस, I would reproduce it when physical verification. So just put that extension form there with signature. है ना। एक्सटेंशन फॉर्म आपको आई ओके थिंक होना चाहिए आपका जो आपको आपके जो पोर्टल है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने का सेक्शन होगा जहां से आपने अपना ऑफर लेटर डाउनलोड किया है, वहीं से एक्सटेंशन फॉर्म का भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो वो आप कितने भी डॉक्यूमेंट के लिए लगा सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, राइट। ओके भैया। और कोई क्वेरी फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट? अच्छा हाँ भैया, मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता था। मैं जब ग्रुप में ऐड हुआ, अच्छा तब उसके पहले तक मतलब मेरे को लगता है मैंने लास्ट 1 मंथ में ही ग्रुप में ऐड हुआ था। ओके। उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की। जो आपकी टेस्ट थी, कई सारे आपने जो पेपर प्रीवियस ईयर करवाए, एंड आज आप उसमें सिलेक्टेड से है। मतलब हाँ, PSL भैया PISL मिल गया है। अच्छा ग्रेट। और मुझे जो आपने, जब आप प्रीवियस ईयर नेट JRF की करवा रहे थे, तो उससे मतलब सबसे मेन चीज़ ये था कि पता चल गया कि आप पढ़ना क्या है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस था और उसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से क्या पढ़ें। जो प्रीवियस ईयर आपने करवाए जो कई सारे, तो उनसे काफ़ी हर्ष टेकन सपोर्ट शायद मिल गया प्रीवियस कि ईयर क्वेश्चन पेपर का हर्ष ने लिया था शायद, हाँ सही है। तो थैंक्स यार आपका। वैसे मेहनत तो आप ही लोगों की थैंक है, यू 1 भैया। महीने में किया हो या 15 दिन में किया हो, आप ही लोग पेपर किए, आप ही टिक किया, आप ही क्वेश्चन किया, आप ही का भैया सिलेक्ट। मैंने तो जनवरी से कर रखा था, मैंने स्टार्ट ही ग्रुप से किया था, पूरा का पूरा गाइडेंस मैं पूरा उस चैनल पर रिलाई कर रही थी। और मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था आप कम्युनिकेट कर रहे हैं हमसे, जैसे आपने सब डाल रखा था पूरा ड्राइव वगैरह पे, उसी से मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी, बिल्कुल डायरेक्शन मिल गई थी। थैंक यू यार। आप मतलब चलो हमने डिसअपॉइंट नहीं किया, आप जनवरी से हम पर रिलाई कर रहे थे, और अगर वो कम्युनिकेशन आपको पसंद आए तो व्हेन वी मीट इन फिजिकल मोड तो फिर तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी हम सब लोग जो 50 सिलेक्टेड है वी वुड मीट इनटू JNU आल्सो। एक बार आप आ जाइए सब लोग, ठीक है। एंड इस जर्नी को और आगे लेके जाएंगे, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों का सिलेक्ट छोटा सा भी अगर हमारा योगदान है, और इट वाज नॉट जस्ट मी, मेरे साथ 10-15 लोगों का ये पूरा एक टीम था जिन लोगों ने अपनी क्लास ली। जैसे आपने बताया नेट JRF के क्वेश्चन हर्ष ने करवाए थे, वो जो ड्राइव का लिंक है वो गीतिका ने क्रिएट किया था। तो ये सब चीजें बेसिकली एक टीम एफर्ट है, और आप जब आएंगे तब वो समझ में आएगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, काइंड ऑफ थिंग। सो यू हैव टू वर्क इन अ टीम, और वो बहुत अच्छे से हमने कोशिश की, और वो कोशिश का फायदा हमको मिला कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। दिस इज बेस्ट अप्रिशिएशन हमारे लिए। यू कैंट अंडरस्टैंड कि हम कितना खुश हैं आप लोगों के सिलेक्शन से। हमको खुश नहीं इस सेंस में, हमको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, आप तो कोई कोचिंग भी नहीं दे रहे, बट वे से कि आपके जो वर्ड्स है ना, ये हमको वो शो कर रहे हैं कि लुक पीपल कैन डू इट विदाउट एनी कोचिंग एंड एनीथिंग। दे हैड दैट एफर्ट, बट व्हाट दे नीड इज जस्ट अ स्मॉल, थोड़ा सा एक स्टेप दिखाने वाला कोई चाहिए। सो एग्जैक्टली भैया, आपने बार बार इम्फेसाइज किया था कि कोई कोचिंग मत लेना, वरना मैं तो ले लेती शायद, और वो बिल्कुल वेस्ट जाता, बिल्कुल जरूरत भी नहीं पड़ी किसी कोचिंग की वेस्ट हमें। नहीं जाता, वो किसी की मार्केटिंग के काम आता। हाँ मुझे नहीं पता आप कनेक्ट हुए कि नहीं, देन फिर आपकी फोटो रिवॉल्व होती कि देखिए सिमी हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम अवर कोचिंग, ठीक है। सो उसके नाम पे फिर एग्जैक्टली 500 बच्चों को अगली बार एडमिशन दिया जाता है, देन 500 तो सीट भी नहीं है JNU में। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली तो वही। और ऐसा भी हुआ ना कि मतलब पूरी डायरेक्शन मिल गई, तो हमें हमें जिस चीज की जब जरूरत थी बिल्कुल वैसे आंसर्स अपने आप मिल जा रहे थे हमें। और मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि इतने अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी इस चीज की भी। तो सिमी आई वांट कि अगले साल आप भी इसी तरीके से गाइडेंस करें, ठीक है। ठीक बिल्कुल। है, थैंक because this is not free. I must say this is not free. You people have to pay now. You have to pay by your hard work again, because hard work आपने इतना किया, आपको पता है। Now you have went through this journey, तो आपको पता है, तो बस वही आपको your experience you have to give it to people, ठीक है। So जब आप आएंगे कैंपस में और अगले साल के जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे तो आपको वापस देना है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, देयर इज नो फ्री लंच, ठीक है। तो दिस इज योर fees to repay by teaching next generation, next batch of the student next time, ठीक है। So this is not an enforcement from my side. I'm not saying कि compulsory है, but by yourself, ठीक है। जो भी आपका होगा वो हम बात कर लेंगे आगे आके कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है।
ठीक है। सो इट डेफिनेटली हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल था ये चीजें। जिस तरीके से आप लोग कई बार तो क्लास हमको जबरदस्ती खत्म करनी पड़ती थी कि ना मुझे भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा भाई, मैसेज कर देना डीएम में, बिकॉज यू पीपल आर सो इंटेलिजेंट, हमसे तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। आई डोंट नो कि क्यों कट ऑफ नीचे गिरी है, वो हमें देखना होगा, लेकिन यू पीपल आर वे इंटेलिजेंट देन अस। और ये हम सब बैठ के जब बात करते थे टीम वाले लोग, तो हम सोचते थे कि यार ये लोग तो मतलब फाड़ डालेंगे एग्जाम इस बार, कि हम ही को पीछे पड़े रहते हैं कि ये क्वेश्चन बताओ ये बताओ। हम खत्म कर दिए गांधी, लेकिन दे आर जस्ट रिवॉल्विंग, नहीं 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 ये क्वेश्चन बताइए। सो दैट्स अ गुड थिंग, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अभी आपसे बहुत और कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो वी कैन टेक, एंड अदरवाइज मेरा मोनोलॉग ज्यादा ही हो गया, सो वी कैन एंड इट, बहुत ज्यादा टाइम हो गया आई थिंक। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज। भैया मुझे जो यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन और प्रोविजनल मिला है वो मतलब ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हम प्रिंट करा के नहीं, ले आएंगे? एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही देती है तो फिर आप कहाँ से लेके आएंगे ऑफलाइन, सिंपल। सर आप उसको चलेगा एकदम, बस उसकी फोटो कॉपी निकाला दीजिए, कलर। और अभी मार्कशीट भी नहीं आई है, तो थर्ड ईयर का रिजल्ट लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा, आप थर्ड ईयर का लगा दीजिए, नो इशू। जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस इतना डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। मेन चीज ये, जेएनयू में एडमिशन रिजेक्ट नहीं होता है आपके डॉक्यूमेंट की वजह से। कुछ बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बस एक ही चीज आपको करना है, आपको एंट्रेंस क्लियर करना है। वंस यू क्लियर द एंट्रेंस, इट इज योर राइट, आप कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। आप एलिजिबल है तो नो इशू। आप वो अपना लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट लगा दीजिए, कोई इशू नहीं। और कोई क्वेश्चन? और बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कभी भी आप मेरे को मैसेज कर दें। हाँ, कई बार मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आई ट्राई टू रिप्लाई यू इमीडिएटली, बट होता है कई बार मैं भी फंसा होता हूँ, लेकिन आई वुड श्योरली रिप्लाई यू पीपल, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक ग्रुप भी है सिलेक्टेड का, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइन, शुड वी एंड नाउ और देयर एनी अदर क्वेश्चन? No another question? Okay, so congratulations you again, ठीक है, from JNUSC team, and we are looking forward to people basically जब आप यहाँ कैंपस में आए तो हम और अच्छे से बात करेंगे। आज 15-20 लोगों से ही है, लेकिन जहां तक अभी तक खबर है तो 53 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, तो आई वांट ऑल 53 टू कम ऑन कैंपस एंड हम मिलें, चाय पिए, जेएनयू की ढाबा कल्चर पे, ढाबा पे बैठ के बात करें, ठीक है। आपकी डिफरेंट स्टेट्स यू आर रिप्रेजेंटिंग, सो we would learn many things from you people, so we just look forward to those golden days जो आने वाले हैं। So congratulations you people again. If you have anything, any query, बेझिझक ask anytime in the group or in personal chat. All the best again. Bye, see you.